गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज राजू कुमार एंड लर्निंग एसक्यूएल फ्रॉम स्क्रैच के इस प्लेलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स जैसे डाटा क्वेरी लैंग्वेज और डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज कमांड, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड डीएमएल कमांड, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड एंड डाटा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड के बारे में पढ़ा था। नाउ अब हम इच टाइप्स को ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे, हर कमांड को समझने का कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। सो आप यहाँ पर समझने पर फोकस कीजिए, नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आवर फर्स्ट टाइप ऑफ SQL command is data retrieval language command DRL command, or it is also known as data retrieval data query language command, that is DQL command. So basically in the DRL or DQL command, it is used to fetch or retrieve data from a database. If you want to fetch any data which is stored in database, we can use the data retrieval language command. So basically it helps us to get information without changing anything inside the database. It means हम लोग database में कोई change नहीं करते हैं, बस हम लोग database में जो values store है उसको retrieve मतलब कि बाहर निकाल कर उसको देखने का कोशिश करते हैं कि क्या डाटा stored है database में। So DRL कमांड में एक ही मेन कमांड आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो कमांड है आपका select कमांड। तो select here it is written that it is the most important and the only command in data retrieval language. So आइए हम लोग select कमांड के बारे में पढ़ते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है और इसके रिलेटेड एक एग्जांपल को भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ओके, select कमांड को यूज क्यों करते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं DRL कमांड डाटा को फेच और रिट्रीव करने के लिए यूज होता है, तो select उसी में हेल्प करता है। सो select इज द मेन select is used to select or fetch data from one or more tables. It means टेबल से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए हम लोग सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है? सो इन द सिंटेक्स वी यूज सेलेक्ट, देन वी चूज आवर कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2 अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, एंड देन वी स्पेसिफाई द टेबल नेम फ्रॉम विच वी वांट टू एक्सट्रैक्ट आवर वैल्यूज और डाटा। सो बाय राइटिंग द फ्रॉम we take the table name from where we want to extract the data. So for example, let's any table of students, let's suppose this is the table of students which contains name column, age column. Okay, so if we want to select name and age column from this students table, then we write the command select name and age. So basically name and age are columns name from specify the which table is used for extracting the data. For selection of table, from is used from students. So here student is a table name. So this is our select command. Now we also understand that some other important commands which is very important in the process of learning SQL. So let's start. Our second main important command is where command. Where is a condition based command which is used to reduce rows based on the given condition. Basically इस कमांड में एक कंडीशन दिया हुआ होता है जिसके थ्रू हम अपने डाटा को कंप्रेस करते हैं, मीन्स रिड्यूस करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है? तो सिंटेक्स इज सेलेक्ट स्टार मीन्स ऑल द कॉलम्स फ्रॉम here is the we write the table name where we give the condition. So where command is used to specify the condition. So we want to understand from the example. Let's suppose example select star from students. Student is our table name where age is greater than 18. So our condition is age greater than 18. So from this SQL command we want students, we want all details of students whose age is 18 plus or greater than 18. So this is the condition we specify in this command. So for specifying any condition in the SQL we use the where command.
In the next important command is between. Between is used to select values within a range. So it is used to select values within a range. So if you want to, for example, we want to select values from 20 to 50, then we use the command between. It is very important to note that the range which given in this command are inclusive. For example, if we want to find a range between 20 and 50, then both the values 20 and 50 both are included. So here is the syntax for the between command. Syntax: select star from means select all the columns from table name. We specify the table name, then give the condition. Here in the second we learned about the where command. Here we used it, where, and specify columns. Column, it means I need a column which gives between value 1 and value 2, and this value 1 and value 2 can change according to your choice. So let's understand from the example. So in this example, here it is visible, yeah. So from this example you can see that we select star from students. Select star from students. Students is the table name. Where is the condition based command. Age is the column, and we use the between 18 and 25. It means we want to extract all the values or all the data of students whose age, मतलब कि जिनका एज 18 और 25 के बीच में लाई करता है. तो ये आपका कमांड क्या देता है, दिस गेट्स स्टूडेंट्स एज्ड 18 to 25, और जिसमें आपका 18 और 25 दोनों एज इंक्लूडेड है. इट मीन्स अगर हम ये कमांड लिखते हैं तो यह हमारा 18, 19, 20, 21 से लेकर आपका जो भी 25 तक एज होगा, सारा कमांड आपका आउटपुट में आएगा. जो भी इनके रिलेटेड वैल्यूज स्टोर्ड होंगे वो आपको डिस्प्ले होंगे आउटपुट में. सो अभी तक हम लोगों ने 3 कमांड्स पढ़ लिए हैं. फर्स्ट वन इज द सेलेक्ट कमांड, सेकेंड वन इज द वेयर कमांड, एंड द थर्ड वन इज द बिटवीन कमांड. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर ऑल्सो, और एल्स notes is also given in the description box. You can download it from there. Our next important command is in command. So in command is used to check if a value matches any value in a given list. It means some lists are given with the conditions or values, and we check that our column is matching with those values or not. So let's understand first the syntax, then we will understand from the example, then it will clear. So here the syntax is very simple. We write that select star from table name. We specify the table name, then give the condition where column in. It means where means जहां पर आपका जो कॉलम है, इन मतलब कि जिसमें वैल्यूज होने चाहिए. कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, वैल्यू 1, वैल्यू 2, मतलब कि आपको जो वैल्यूज चाहिए वो आपको इन कमांड बताता है. तो हम लोग इसको एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं. जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, इट मीन्स हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑल मतलब कि ऑल वैल्यूज. स्टार स्पेसिफाइड ऑल वैल्यूज फ्रॉम कौन से टेबल से, स्टूडेंट टेबल से. वेयर हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं जहां पर हम लोग का जो सिटी होना चाहिए वो इन बताता है कि आपका ये तीनों वैल्यू उसमें होना चाहिए. मतलब कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, मतलब कि हम लोग को वो स्टूडेंट का वैल्यू चाहिए जिसमें ये तीनों सिटी अवेलेबल हो, या इन तीनों में से कोई भी एक अवेलेबल हो, वही आपका आउटपुट देगा. तो इन आपका यही स्पेसिफाई करता है. सो दिस गेट्स स्टूडेंट्स हु लिव इन दिल्ली, मुंबई और पुणे. इट मीन्स जो भी स्टूडेंट इस स्टेट्स में रहते हैं उनका डाटा हम लोग फेच कर लेंगे बाय यूजिंग द इन कमांड. सो द नेक्स्ट कमांड इज द नॉट इन कमांड. नॉट इन कमांड इज जस्ट अपोजिट टू द इन कमांड, and it checks that value does not match in any value in a list. So list is provided, this is our list, and check कि ये list fulfill हो रहा है कि नहीं हो रहा है. मतलब कि इसके अलावा नॉट इन बताता है कि ये जो वैल्यूज है ये आपका फुलफिल नहीं होना चाहिए, और जो फुलफिल वैल्यूज नहीं होगा वो वैल्यूज आपके आउटपुट में आएगा. तो इस सिंटेक्स स्पेसिफाइड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नॉट इन, मतलब कि कॉलम आपका ये वैल्यूज कंटेन नहीं करना चाहिए, मतलब कि इसके अलावा जो भी वैल्यूज होंगे वो आपको दिखाई देगा एज आउटपुट. सो फॉर एग्जांपल लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जांपल. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी नॉट इन दिल्ली, मुंबई.
तो हम लोग को यहाँ पर वो सिटी चाहिए जिसमें आपका दिल्ली और मुंबई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो सो हियर इट एक्सप्लेन दिस गेट्स स्टूडेंट्स हु लिव एनीवेयर एक्सेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट दिल्ली एंड मुंबई, मतलब दिल्ली और मुंबई को छोड़कर जो भी हमारा सिटी होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा एज आउटपुट। सो आवर लास्ट कमांड इन दिस वीडियो इज नल। तो इज नल का यूज करते हैं हम लोग चेक करने के लिए कि हमारा कॉलम का जो वैल्यू है वो एम्प्टी है कि नहीं है। इट मीन्स वो नल वैल्यूज कंटेन करता है, वो चेक करने के लिए हम लोग इज नल का वैल्यू स्टोर करते हैं। इट मीन्स अगर हम लोग इज नल यूज करेंगे तो जो भी वैल्यूज नल वैल्यूज कंटेन किए हुए होंगे उसका हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा। जैसे कि लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट सिंटेक्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, हियर स्पेसिफाइड टेबल नेम वेयर कंडीशन इज गिवन, कॉलम our column name and is null. So let's understand from the example, then you will clear the syntax. Select star from students, so students is our table name, and then we specify the where, it means we specify the condition, and our condition is that phone number is null. It means ये बता रहा है कि जो भी फोन नंबर, जो भी स्टूडेंट का फोन नंबर इज नल, इज नल मतलब कि जो नल वैल्यू है, मतलब कि जिसका भी फोन नंबर सेव नहीं है, मतलब कि जिसका भी फोन नंबर में वैल्यू में, जैसे कि फोन नंबर यहाँ पे एक, ये कोई स्टूडेंट टेबल है जिसका नेम है, ये स्टूडेंट टेबल है लेट्स सपोज, और यहाँ पे माना आई माई नेम इज राजू एंड इट्स कंटेन्स द नल वैल्यू, एंड हियर कंटेन्स द रानी एंड इट्स कंटेन्स द 7876 समथिंग वैल्यूज। देन बाय राइटिंग द कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर फोन नंबर इज नल गिव्स द आउटपुट एज राजू बिकॉज इट कंटेन्स द नल वैल्यूज, मतलब जो वैल्यू नल कंटेन करेगा वो आउटपुट में दिखाई देगा। तो हमारे इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा मेरा राजू एंड नल, ये आउटपुट में शो करेगा मेरा इज अ नेम एंड फोन नंबर। सो इट्स shows us this gets students who have no phone number saved. It means Raju has no phone number saved, that's why it shows null value, and this is our output from this command. So this is all in this video. In the next video we further study the different types of commands which is very useful in the learning process of SQL. Please subscribe my channel for the tech content. Thank you everyone.